of stay of a tourist in India is around 22 days. How much? 22 days. It is around 22 days. So it is an average length of stay. It can vary because there are some tourists who stay less than that, or there are some tourists who stay for more than that time. So it is actually 22.7 days is the average stay of an international tourist in India. Okay. तो Yes, sir. अब जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को इंक्रीज करने के लिए ये स्ट्रैटेजी भी कही जाती है कि अगर हम ये जो एवरेज स्टे ऑफ टूरिस्ट है इसको बढ़ाए, इफ इट विल बी इंक्रीज्ड, सपोज इफ इट इज अराउंड 22.7 days, if it will be increased to say 25-26 days, so definitely the foreign exchange earnings will increase because the tourist will spend more time and he will be spending more money in that country, isn't it? Yes, sir. तो अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ के लोग 22.7 डेज से ज़्यादा स्टे करते हैं इंडिया में, और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ के लोग 22 डेज से कम स्टे करते हैं इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो हाईएस्ट कंसिडर की जाती है वो है यमन के टूरिस्ट्स। The tourists who come from Yemen, they have been found to stay for about 62 days in India. एवरेज स्टे क्या है फॉरेन टूरिस्ट का? 62 days. नहीं, एवरेज स्टे है 22.7 days. 22.7, yes, sir. हाँ, that is the average stay. But at the same time, there are some tourists, there are foreign tourists from some countries whose stay in India is much more than that. As I quoted the example of tourists from Yemen, their average stay in India has been found. Average stay from Yemen tourists, not from all foreign tourists. From all foreign tourists, it is 22.7 days. From tourists from Yemen, it is 62 days. Then, tourists from Nigeria, their stay 42 days. Tourists who are coming from Canada, they on an average stay for about 34 days in India. Tourists who come from Portugal, they stay for about 32 days in India. Then we have tourists coming from Tanzania, they stay for about 31 days in India. Even it has been found that tourists who come to India from Pakistan, they stay for 30 days average. Tourists who come from USA and New Zealand, they have been found to stay in India for 29 days. तो यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज़ के जो टूरिस्ट्स हैं वो ऑलरेडी इंडिया में 22.7 डेज से ज़्यादा स्टे करते हैं। जैसे यमन का आपने देखा 60 डेज से ज़्यादा स्टे करते हैं। तो इंडिया USA के 29 डेज या नाइजीरिया के 42 डेज, पोर्चुगल के 32 डेज, कनाडा के 34 डेज। तो ये सिग्निफाई करता है कि देयर इज अ स्कोप दैट वी कैन increase the length of stay of foreign tourists in India. And if we will do that, there is definitely a scope for increasing the foreign exchange earnings from tourism.
तो हो गया ये एस्पेक्ट, लेकिन साथ ही ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ के टूरिस्ट्स यहाँ पे कम दिन रहते हैं, तो वहाँ पे स्कोप है कि उन टूरिस्ट्स का स्टे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि it has been found that the tourists who come to India from Oman, their average stay in India has been found only 11 days. Tourists who come to India from United Arab Emirates, UAE, and Myanmar, their length of stay in India has been found on an average only 12 days. In the same way, tourists who come to India from Taiwan, Vietnam, Singapore, so they also have been found to stay for an average duration of 13 days, 13 days in India. And tourists who come to India from Malaysia, Sri Lanka, Bangladesh, their average duration of stay in India has been found 14 days. And tourists who come from Mexico, they have been found to stay in India for about 15 days. तो अब आपने जो यहाँ पे कुछ जो हमने यहाँ पे फिगर्स स्टडी की, जहाँ पे हमने देखा कि देयर आर मेनी कंट्रीज हुज टूरिस्ट्स ऑलरेडी स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 22.7 days. And there are many countries whose tourists stay in India for less than 22 days. So what we can do, we can focus on those tourists. We can focus on those countries whose tourists are staying for lesser number of days, like tourists from Oman who stay in India for 11 days. Or Singapore or Taiwan or Myanmar, Malaysia. If we will focus on increasing their length of stay, we will be able to generate a huge number of foreign exchange earnings, because it has been found that we are receiving a huge number of tourists from Malaysia or Bangladesh. So definitely their enhanced length of stay can earn foreign exchange earnings for the country. So this was about the length of stay, and now we have to think about how we can increase this length of stay. अब हम इस length of stay को increase कैसे करें? क्या सब कुछ हम करें जिससे हम ये लेंथ ऑफ स्टे इंक्रीज करें? तो उसके लिए जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, देयर इज अ बिग डाइवर्सिटी इन इंडिया, whether it is diversity in culture, whether it is topographical diversity, because you have North India, you have South India, there is an absolute variation in North and South India. So, on the other hand, the size of the country is also large. So, a tourist, just length of stay can easily be increased, because tourist can be offered a number of products. A number of tourism services can be availed by the tourist, which will take him more than the time that he is actually spending in the country. तो वो चीज़ हो सकता है, उससे हम ये जो है ड्यूरेशन, ये लेंथ ऑफ स्टे टूरिस्ट्स का इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो उसके बाद हम प्रोफाइल की बात करते हैं, जहाँ तक प्रोफाइल का सवाल है, तो प्रोफाइल ऑफ विजिटर्स जो होता है वो स्टडी करना भी टूरिज्म में ज़रूरी होता है, क्योंकि
प्रोफाइल से ही जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम एनालाइज करते हैं प्रोफाइलिंग में, जैसे कि अभी जो हमने बात की, वी टॉक्ड अबाउट दैट वी आर रिसीविंग टूरिस्ट्स फ्रॉम Bangladesh, Oman, who are Malaysia, who stay for this much number of days. We are receiving tourists from Canada who are staying for 34 days. We are receiving tourists from USA who stay for 29 days on an average, isn't it? We are receiving tourists from this Yemen who stay for 62 days on an average. तो ये कैसे हमको पता चला? तभी हम, जब हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, तभी हम ये कर सकते हैं कि हमने देखा कि ओमान से जो आते हैं वो खाली 11 दिन यहाँ पे रहते हैं, तो हम ओमान में अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऐसे करें, अपना जो प्रोडक्ट है उसको वैसे डिज़ाइन करें, वहाँ पे ऐसे ऑफ़र करें कि उनको अपना लेंथ ऑफ स्टे बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हो। वो उनको लगे कि 11 दिन में हम पूरा इंडिया नहीं देख सकेंगे, हमको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो वो हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास ये डेटा है, और ये डेटा हमको तब आ सकता है जब हम प्रोफाइलिंग ऑफ टूरिस्ट्स करेंगे। एंड दैट इज़ वाई प्रोफाइल ऑफ विजिटर्स हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर सिलेबस, सो दैट you may be acquainted with the concept that what is this profiling, how it is done. तो profiling में आप क्या करते हैं, इसमें आप यही specific characteristics लेते हैं जो आप analyze करते हैं टूरिस्ट्स के बारे में, जैसे कि we talk about place of residence, कहाँ से आया ये टूरिस्ट, जो डिसएम्बार्केशन पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स की बात करेंगे जहाँ पे अराइवल पॉइंट्स होते हैं, डिपार्चर पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे हम एक फॉर्म रखते हैं, मतलब जो वो टूरिस्ट फिल करता है, तो उससे हमको ये इंफॉर्मेशन हासिल होती है, उसके बेसिस पर हम प्रोफाइलिंग करते हैं, उसी पर फिर ये स्टैटिस्टिकल डेटा क्रिएट होता है। तो हमको पता चलता है कि टूरिस्ट कहाँ से आया, प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है इसकी, हमको टूरिस्ट का डेमोग्राफिक बैकअप के बारे में पता चलता है कि टूरिस्ट की एज क्या है, सपोज एज ग्रुप, अब उसमें एब्सोल्युटली ज़्यादा एज में हम ज़्यादातर एज ग्रुप रखते हैं, सपोज बिलो 20, फॉर एग्जांपल 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ऐसे 50 to 60, 60 अबव, तो ऐसे उसमें एज ग्रुप्स रखते हैं। उससे हमको ये अंदाज़ा रहता है कि किस एज ग्रुप के टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, किस एज ग्रुप में कितना नंबर ऑफ टूरिस्ट्स आता है, तो वो प्रोफाइलिंग में आता है। फिर मेल है, फीमेल है, जेंडर जिसे हम कहते हैं, तो ये हमको पता लगता है कि कितने मेल टूरिस्ट्स हैं, कितने फीमेल टूरिस्ट्स हैं, तो जेंडर का भी हमको पता चलता है जब उस फॉर्म में वो मेंशन होता है। फिर एजुकेशनल स्टेटस का पता चलता है कि क्या जो टूरिस्ट्स आते हैं वो बहुत हाई क्वालिफाइड है, वो एवरेज मॉडरेटली क्वालिफाइड है, या लो क्वालिफाइड है, या इलिटरेट हैं, क्या है, तो उससे एजुकेशनल स्टेटस का पता चलता है। क्योंकि मार्केटिंग में हमको ये चीज़ें बहुत काम आती है, क्योंकि जब हमने प्रोफाइलिंग की होती है उसी के बेसिस पे हम कल को मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन आपको पता है ना प्रोसेस, जिसमें हम मार्केट को स्प्लिट करते हैं इनटू सेगमेंट्स, तो फिर हम पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करने के लिए प्रोडक्ट उसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं। सपोज़ हमने देखा कि इस एज ग्रुप जो 20s का एज ग्रुप है वो ज़्यादा एडवेंचर टूरिज्म प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल दे आर रिस्क टेकर्स, तो हम उस एज ग्रुप में ज़्यादा एडवेंचर टूरिज्म प्रोडक्ट्स को पोजीशनिंग करते हैं। तो इसलिए हमको ये प्रोफाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और प्रोफाइलिंग में आता है इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। प्रोफाइलिंग से हमको ये पता चलता है, क्योंकि उसमें हम फॉर्म में ही वो मेंशन रखते हैं
इकोनॉमिक स्टेटस की इनकम। अब हम एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत लोगों को ठीक नहीं लगता है एग्जैक्ट फिगर लिखना, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो या इनकम हो, तो इसीलिए उसमें स्लैब्स रखते हैं। जैसे मैंने बोला एज में 20 to 30, 30 to 40, ऐसे एग्जैक्ट हम नहीं उसको पूछते हैं आपकी एज क्या है, हम एज ग्रुप हमको चाहिए, हमको एग्जैक्ट एज के साथ भी ज़रूरत नहीं है, एज ग्रुप हमारे लिए काफ़ी है Yes, sir. जहाँ तक हमको प्रोफाइलिंग का सवाल है। तो हम उसमें वो चीज़ें देखते हैं। इसी तरीके से हम इकोनॉमिक या स्टेटस रिवील करने के लिए इनकम स्लैब्स डालते हैं। सपोज इनकम फॉर एग्जांपल लेस देन 2 lakhs इन अ ईयर, 2 lakh to 4 lakhs, 4 lakh to 6 lakhs। इसी तरीके से हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इसकी जो एनुअल इनकम या मंथली इनकम है क्या है। तो वो हमको ज़रूरत लगता है, क्योंकि जब हम कल को हमको प्रोडक्ट्स को ऑफ़र करना है, तो इकोनॉमिक स्टेटस जब हमने की होती है प्रोफाइलिंग प्रॉपरली, तो हम बजट क्लास एकोमोडेशन या बजट पैकेजेस जो होती हैं वो उस ग्रुप को करते हैं जो जिनकी इनकम कम होती है, और जो एलीट क्लास होता है जिनकी जो इनकम है बहुत ज़्यादा है, उनको हम वो पैकेजेस ऑफ़र करते हैं। क्योंकि जब सेगमेंटेशन हम करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन, तो उसमें हम उस सेगमेंट को अलग से रखते हैं जो हाई इनकम ग्रुप में आता है। तो उनके लिए हम फिर ऐसी पैकेजेस ऑफ़र करते हैं जिसमें एकोमोडेशन 5 स्टार होती हैं, जिसमें जो हम गाड़ियाँ यूज़ करती हैं वो हाई एंड व्हीकल्स होते हैं, जो कि लग्जरी कार्स होते हैं, फुली एयर कंडीशन, बाकी फैसिलिटीज़ कंफर्ट हिसाब से। तो क्योंकि हमको पता है कि इस सेगमेंट में जो बजट है वो कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, बिकॉज वी न्यू दैट दिस ग्रुप बिलोंग्स टू हाई इनकम ग्रुप। सो फॉर द हाई इनकम कैटेगरी वी आर offering such products and services that are expensive. ओके, तो अगर हम वो एक लो इनकम ग्रुप को ऑफ़र करें तो वो उसको एफर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे फिर वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा। दैट्स वाई वी आर एंगेजिंग इन दिस टूरिस्ट प्रोफाइलिंग। तो इससे क्या होता है, टूरिस्ट प्रोफाइलिंग से इट हेल्प्स अस इन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स इन टूरिज़्म। उससे हम एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रहती है, मतलब हमको जो भी पैकेजेस हैं वो बहुत अच्छी तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं अपने टारगेट ग्रुप को और उनको अट्रैक्ट करते हैं सही तरीके से। तो इसमें जो प्रोफाइलिंग है ये हमको बहुत काम देता है प्लानिंग में, क्योंकि जो हमारी टूरिज़्म प्लानिंग है वो अकॉर्डिंगली होती है। जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं टूरिज़्म प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए वो डिज़ाइन की जाती हैं अकॉर्डिंगली। और मोर ओवर ये जो प्रोफाइलिंग है ये हमको बहुत हेल्प करती है जो टूरिज़्म में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, वाइटल एस्पेक्ट हैं, दैट इज़ गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप। सो this profiling helps us a lot in strengthening that guest host relationship, because once we are aware about the profile of the tourists and उसमें हमको फिर आसान होता है उस ग्रुप के साथ, टूरिस्ट के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी बजट की, जब एक इकोनॉमिकली जो लो इनकम ग्रुप है, तो जब हम उनकी अच्छी तरह से जो उनकी नीड्स हमने आइडेंटिफाई की और उनको हमने ऑफ़र किया प्रोडक्ट, एकोमोडेशन, सस्ती एकोमोडेशन, हाइजीनिक एकोमोडेशन, उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बजट कैटेगरी में उनके लिए प्रोवाइड किया, तो डेफिनेटली वो सेटिस्फाई होते हैं। और उससे जब वो सेटिस्फाई होते हैं तो अकॉर्डिंगली जो हमारी उनके साथ रिलेशन है, गेस्ट होस्ट रिलेशन, वो स्ट्रेंथन होती है, वो इम्प्रूव होती है। सो दैट इज़ हाउ प्रोफाइलिंग हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग ए गुड गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप। तो और उसमें ये जो प्रोफाइलिंग है इसके लिए हम काफ़ी
और मेथड्स हैं हमारे पास ये प्रोफाइलिंग करने के लिए। जैसे मैंने बोला, जो अराइवल पॉइंट्स हैं वहाँ पे डेटा होता है, जो डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे सपोज़ जो एडवेंचर टूरिज़्म में ये करते हैं काम टूर ऑपरेटर्स, उनके पास होता है उन टूरिस्ट्स का डेटा जो जिन्होंने उस टाइप की पैकेजेस अवेल की होती हैं। तो वहाँ से हम उन टूरिस्ट्स का प्रोफाइल लेते हैं। तो और पर्पज़ ऑफ विज़िट हमको पता चलता है उसी से कि किस टूरिस्ट का क्या पर्पज़ ऑफ विज़िट है। तो उससे हमको इंक्लिनेशन निकलती है टूरिस्ट की, जिससे हम एक टूरिस्ट के जो इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स और ओपिनियंस को स्टडी करते हैं, राइट। तो ये सब कुछ आता है प्रोफाइलिंग ऑफ टूरिस्ट्स में, राइट। तो उसके बाद इसमें अब जो इस टॉपिक में रह गया, इंडियाज़ इमेज अब्रॉड। तो इंडिया की जो क्या इमेज है, जो बाहर है इंडिया की इमेज, वो सपोज़ हम जब इंडिया की बात करते हैं, जैसे अभी मैं आपको बोल रहा था कि कंसिडर किया जाता है इस वक्त एक राइजिंग इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया की एक ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो नेचुरली यहाँ पे जो अब स्कोप है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से ज़्यादा है। तो उस हिसाब से ये ग्रोइंग इकोनॉमी कंसिडर की जाती है, जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और उसके अलावा दूसरी इमेज है कि यहाँ पे जो इंडिया की जो रिलेशंस हैं थोड़ा हॉस्टाइल है नेबर्स के साथ, जैसे आपने देखा पाकिस्तान के साथ, अभी रिसेंटली चाइना के साथ। तो इससे थोड़ा सा एक इससे भी एक इमेज बनती है कंट्री की। जैसे एक हिसाब से एक नेगेटिव इमेज भी बिल्डअप होती है, क्योंकि जब हॉस्टिलिटी होती है तो उससे थोड़ा सा लगता है टूरिस्ट्स को कि मे बी वहाँ पे जाए तो कुछ खतरा मत होगा, जैसे हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे थ्रेट्स में। तो दूसरा चीज़ ये है कि जब हम इमेज की बात करते हैं, दूसरे साइड से ये है कि इंडिया में को एक कंसिडर किया जाता था वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्री जिसमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इंडिया का, वो चीज़ उसको देखा जाता था पॉजिटिवली। तो थोड़ा सा रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जिससे थोड़ी इंटरनेशनली थोड़ी सी इमेज वीक हो गई इंडिया की उस एस्पेक्ट में। तो बाकी जो है इंडिया का कल्चर जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी पाई जाती है इंडिया में। क्योंकि एक ही कंट्री में जो मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास हैं वो पहने जाते हैं, एक ही कंट्री में जो मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस हैं वो बोली जाती हैं। जैसे साउथ इंडिया में कन्नाडा वो लैंग्वेज है, जो वहाँ पे उनको इनफैक्ट हिंदी समझ में ही नहीं आता है। हालांकि कंट्री की जो मेन लैंग्वेज है वो हिंदी है, लेकिन कंट्री में ही कुछ स्टेट्स हैं जहाँ हिंदी समझ में ही नहीं आता है। तो ये एक डाइवर्सिटी है। तो इस डाइवर्सिटी को भी टूरिज़्म में काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि ये कल्चरल डाइवर्सिटी है। या जैसे खाना पीना, साउथ का खाना पीना टोटली डिफरेंट है। तो वो चीज़ें जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है टूरिज़्म के लिहाज से, क्योंकि कहते हैं कि जो टूरिस्ट इंडिया आता है, जैसे उसने एक किस्म का मिनी वर्ल्ड टूर किया, क्योंकि उसको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलता है। बहुत किस्मों के लोग, शक्लें अलग अलग हैं। सपोज़ आप आसाम नॉर्थ ईस्ट में जाए, लोगों की शक्ल डिफरेंट है। कश्मीर में आए, लोगों की शक्ल डिफरेंट है। फिर साउथ इंडिया में जाइए, लोगों की शक्ल डिफरेंट है। तो ये एक डाइवर्सिटी जो है, ह्यूज डाइवर्सिटी, ये एक इमेज क्रिएट करती है इंटरनेशनल टूरिज़्म मार्केट्स में।
और एक अट्रैक्शन बिल्डअप करती है। मोर ओवर यहाँ पे जो हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है लगभग 130 करोड़ से ज़्यादा है, और कहते हैं कि कई कुछ ही सालों में ये चाइना की पॉपुलेशन को भी ओवरटेक करेगी। सो दैट इज़ विद इन फ्यू years it will surpass the population of China। तो वो भी एक हाई मतलब जो पॉपुलेटेड कंट्री है, ये भी एक इमेज है इसकी। फिर यहाँ पे जो कंट्री में बाकी जो है सपोज़ जिसको हम कहेंगे मेन जो तवारीख रही है इंडिया में, तो वो भी कुछ जैसे कि यहाँ पे इंडिया पहले कंसिडर किया जाता था होम टू मैनी एंशियंट सिविलाइजेशंस। सो दैट इज़ ऑल्सो कि यहाँ पे जो बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस इंडिया में रह चुकी हैं, जैसे आप हड़प्पा, मोहनजोदारो, तो बाकी वो हिस्ट्री में आपने पढ़ी है, तो वो भी एक इमेज है कंट्री की वर्ल्ड में। तो फिर ये जो है एक ब्रिटिश कॉलोनी रह चुकी है, तो यूरोपियन टूरिज़्म मार्केट में वो भी एक फैक्टर है कि वो देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे वो 1600 BC का दौर था जब वो ट्रेडिंग के लिए इंडिया आते थे, तो एक मार्केट था ब्रिटिश के लिए इंडिया। तो फिर 1858 में कम्प्लीटली इंडिया अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल आ गया। तो फिर आपको पता है कि 19th सेंचुरी में मतलब 1920 में फिर काफ़ी वो जो फ्रीडम स्ट्रगल चली इंडिया की अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, वो दौर चला। तो वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जब फिर ब्रिटिश को यहाँ से निकलना पड़ा, तो वो भी एक वर्ल्ड हिस्ट्री में मेंशन है। तो ये इमेज भी इंडिया की बिल्डअप हो गई है। तो फिर यहाँ पे कुछ जो वॉर्स हो गए हैं इंडिया में, 1947 का है, 71 में हो गया, तो उसकी भी एक इंटरनेशनल एक पब्लिसिटी हो गई, एक इमेज चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्ड हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट पीपल नो अबाउट इंडिया आउटसाइड। ओके, so with this we complete this unit, right? तो इंशाल्लाह आप इसको स्टडी करना, तो फिर जो आपको लगेगी किसी जगह कुछ और डिस्कस करना, then we will discuss that, right? So okay, right now we have to साकिब आ गए आपके वो